جی میں میرے منہ جی پھالیا شریف تے پکھی شریف ہے سارے نال لانے تے یہ بالکل سٹائل جڑا صرف پیر یعقوب شاہ صاحب والا سی جڑے لوگ پرانے جانتے ہیں انہوں نے پتہ ہے سارا. بہرحال جی اسی اپنے ٹائم تو باہر نکل گیا. پیر زید شاہ صاحب کتنے کتنے تشریف رکھتے ہیں ہے نہیں تے جناب ہوں اسی اینڈ کرنا ہے. ویسے آلریڈی انہوں نے مشن کے بارے میں آلریڈی گل کافی ہو چکی ہے لیکن میرے پرزور اصرار تے میری فرمائش تے زید شاہ صاحب نے میں کہا سی کہ تسی دو جملے اپنی زبان میں جڑے نا آ کے بولنے نے کے ورنہ وہ تو کہنے سن بھی علماء نے بھی تو سارے نے خطاب کر لیا کہ ذرا پلیز تشریف لے آؤ قبلہ اپنا 2 منٹ لینا ہے. چار صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. شاہ صاحب جڑے ویسے ہی تو پتہ بڑے سمجھدار نے. وہ مینوں اتنے بسایا ہے ایک پاسے کھانا ہے ایک پاسے پروگرام ختم ہو گیا ہے وہ 2 منٹ میں کیا گل کروں گی پر نہیں یہ پیپر دیکھ کے آپ یہ نہ گھبرا جائے کہ بہت لمبی تقریر ہے. چند منٹ اپنی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. صلائے رب ذوالجلال اور درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنے کے بعد میں یہ جو پروگرام ہے ساری دنیا علماء اکرام فقہا محدثین بہت کام کر رہے ہیں لیکن آج کی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح بغدادی صاحب نے بتا دیا ہے کہ کرنا کیا ہے اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. صرف ذکر الہی کرنے کے لیے ہمیں ذکر حبیب ضرور چاہیے کیونکہ میں تو اللہ کو جانتا نہیں. میرے نبی نے کہا اللہ نے مان لیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم کی بات 40 سال بعد آئی. علم کی بات 40 سال بعد آئی. میرے آقا میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ اتنا پیارا نبی آپ نے ان کو گرمی میں بھیج دیا جاہل لوگوں میں بھیج دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے قسمیں اٹھا کے انسان کو پیدا کیا ہے. میں نے قسمیں اٹھائی ہیں. یہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں میں نے اس کی تخلیق کے لیے. اور جب وہاں میری انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی جاؤ ذرا خانہ کعبے سے باہر نکلو وہاں ایک ہال ہے کوئی گراؤنڈ ہے جہاں تارا لگا ہوا ہے وہاں میری بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا. تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا. میں نے نبی رحمت کو کہا کہ آپ رحمت اللہ عالمین ہیں آپ ان کو جا کے سمجھائیں. میرے آقا نے 40 سال اپنے کردار سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اگر بزنس کرنا ہے تو مجھ سے سیکھیں, اگر حکومت کرنی ہے تو مجھ سے سیکھیں, اگر پڑوسی کے حقوق جاننے ہیں تو مجھ سے سیکھیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اس وقت جب میری سرکار جو ہیں وہ ایک ہندو چیریٹی ان کو جو اسلام کے خلاف تھے کافر تھے ان کی چیریٹی میں جا کے کام کرتے تھے اپنے اسوہ کو دکھانے کے لیے. میں نے 3 دفعہ الحمدللہ کہا. پہلی دفعہ اس لیے کہا کہ میرے جیسے نچیز انسان کو دنیا دار انسان کو اگر یہ چن لیا گیا تو اس سے بڑا شکرانہ کوئی نہیں سکتا. دوسرا ہم میں نے اس لیے پڑھا کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. میرے رب نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. پہلے میں نے آپ کی کمیونٹی کی خدمت کی, آج بھی خدمت کے لیے پھر اللہ پاک نے میری ڈیوٹی لگا دی. اس پہ میں شکرانہ ادا کرتا. عاشقان رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اولیاء کرام نے محدثین نے جو ہمیں قرآن سکھایا ہے اس کے اوپر بات ہوگی نقش پیر صلی اللہ علیہ وسلم میں. بات کا فارمیٹ کیا ہے کہ میں لا علم انسان ہوں. میں اگر میزبانی کروں گا تو میں خدا سے پوچھوں گا یا اللہ میرے پاس پیسے آ گئے میں خرچ کیسے کروں. وہ مجھے کہے گا یسرونک
तसल्लुन, ये आपसे पूछते हैं, नबी आपसे पूछते हैं खर्च कैसे करें। तो हम अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह के कुरान से बात करेंगे, नबी से पूछेंगे करना कैसे है। ये है इसका फ़ायदा। मैं आखिर में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने यहाँ आकर मेरा हौसला बढ़ाया है। ख़ुसूसन ज़िंदगी में डिफरेंट हालात होते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मेरा नाम किसी का भूल जाए या मैं किसी का नाम ना ले सकूँ तो उसकी इबादत चाहता हूँ। लेकिन इस सारे मेरे 1990 में मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरी बाजू जो हैं वो सबसे बड़े बाजू में अपने बड़े भाई हैं, मेरे फादर फिक्र कह लें, चौधरी अख्तर मौलाना साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुर्शिद पाक के सबसे पहले मुरीद जनाब चौधरी शुक्ला साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर वो इंसान नहीं भूलता जब कोई ना हो तो वो साथ हो, जब कोई ना हो तो वो साथ खड़ा हौसला दे रहा हो। वो चौधरी शाहिद, चौधरी शाहिद ने हमेशा मेरे साथ खड़े होकर मुझे हमेशा हौसला दिया। मैं दिल की तह गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ, उलमा इकराम का, शाह साहब का, और ख़ास तौर पे मेरी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर साहब तशरीफ ले आए। और दरबार शरीफ के बारे में छोटी सी बात करूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें ये अता किया है, मेरे मुर्शिद कामल की ये करामत कह लें। आपने फरमाया कि मांगना नहीं है, और मैंने इसको एक शेर में बयान किया है। मुर्शिद ने इको गल की थी, मंगना नहीं तो लै देवां। मुर्शिद ने इको गल की सी, मंगना नहीं तो लै देवांगा, पंज तन पाक दी नज़र बथेरी, रब सोने को लै दे। पंज तन पाक दी नज़र बथेरी, रब सोने को लै देवांगा। और ये फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम जो मैंने जिक्र किया ना, ये हमारे लिए हदायत थी। आपने सारी उम्र ये कहा कि जब अल्लाह का जिक्र करोगे और अल्लाह कहेगा मेरे नबी का पहले जिक्र करो, बस ये जिक्र करोगे तो तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। और आगे जो आखिरी शेर है उसमें उन्होंने हमें एडवाइस किया, नसीहत की, शुक्र करना, रब की दौलत का मान ना करना, ना आपस में प्यार लगना। ये हमारे लिए शुक्र करना, रब की दौलत, इस दौलत का मान ना करना, ना आपस में प्यार लड़ना। और आखिर में क्या कहा, जिक्र इलाही करना, आशिक हाँ सोने नबी का इस सीने में लै देना। आशिक हाँ सोने नबी का इस सीने में लै देना। हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अक्सर लोग कहते हैं शाह साहब आप सामने नहीं आते, उनको मैंने कहा कि ये वक्त मेरे रब के पास। और आज मुजम्मल शाह साहब से बात हुई, जुवेशा साहब ने उनका उनको कितना ख्याल आ गया। उनको क्या पता है कि ख्याल खुद हो तो कुछ कर नहीं सकते, जब अता हो तो फिर होता है। ठीक है। और आखिर में मैं सब दोस्तों का, सारे इंतजामात में जनाब शेख साहब ने, राजा अली साहब ने और सजाद साहब दूसरे मेरे दोस्त हैं, और सब लोगों ने मेरे लिए ये जो तावन किया है, मावनत की है। और ख़ुसूसन मैं अपने ऑफिस की टीम, मदद साहब, मियाँ साहब, ये जितने लोग हैं मेरे साथ खड़े थे, और सब इंतज़ाम किए हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुर्शिद की आखिरी बात करता हूँ, जो अभी कहा ना कुरान पाक की तफसीर बताई, मेरे मुर्शिद पाक ने कुरान से ये कहा, ये फार्मूला दे दिया कि ताबेदार जो पाक रसूल दे उन्हें रब महबूब बना लेता। ताबेदार जो पाक रसूल दे उन्हें रब महबूब बना लेंदा। यूह बिबकुमुल्लाह नूं वेख पढ़ लै, यूह बिबकुमुल्लाह नूं वेख पढ़ लै। रब कुरान दे विच फरमा लेंदा, हुब नबी दी हुब खुदा दी, दूजी हुब नूं दूर हटा लेंदा। सैयद फजल जेड़ा नबी दा होया आशिक, वो ज़ात खुदा दी। अल्लाह पाक का करम है, कुछ मस्जिद बन रही है, मस्जिद काफ़ी जो है मदीना शरीफ की, वो अल्लाह पाक ने हमें ये हिम्मत दी है।
कि सरकार ने कहा कि बड़े बड़े लोग कहते हैं शाह साहब 50 लाख देना है, हमें इजाज़त ही नहीं, ठीक है, हम ले नहीं जा सकते। तो ये सारा फैज़ उनका है, आज फैज़ उनका है। और वहाँ जो यूनिवर्सिटी बनने वाली है, इस मशक़ के बाद यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद आखिर में जो बात मैं करने लगा ना कि ये जो वली है ना, अभी मुझे इस चक्कर में डाल दिया गया, तो मैंने जो स्टडी की, ये जो वली है ना, ये जब आका को देख लेते हैं ना तो गूंगे हो जाते हैं। बेशक ये बोलते नहीं हैं, लिखते हैं सर। बेशक। और उनकी आयात तैयबा पढ़ें, उनका कलाम पढ़ें, तो फिर पता चलता है कि ये तो चले गए बता के कि मुझे आका के जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात जो है, जब जनाब वासिफ साहब आपको दीदार हुआ, तो आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं बताया, अपने कलाम में लिखा, अपने कलाम में जब लिखा कि मैंने जब सरकार को देखा, मैं मन्निया नाल यकीन, मैं वेखे अखा नाल, मैं मन्निया नाल यकीन दे, मैं वेखे अखा नाल, ओदे हथ कुंडी यासीन दी, ओदे कुगरा वाले सो इसी तरह मैंने मुर्शद कामिल की जो एक राइटिंग है, जो किताबें हैं उसके पास भी हैं, उसमें आपने इसका तज़किरा किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने वो दुहा का चेहरा देखा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। जब से मैंने वो दुहा का चेहरा देखा है, मैंने सुकून मुझे नहीं मिल रहा। हम तो उस काबिल नहीं हैं। और एक बात फरमाई कि मुझे बेचना मत, मुझे बेचना मत। अगर आप इस काबिल हुए तो फिर आप अल्लाह का जिक्र करें, मेरे भी हाथ नहीं करना, क्योंकि ब्रिगेडियर का बेटा ब्रिगेडियर नहीं हो सकता, पीर का मतलब पीर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये नक्शे पैर सोच इसलिए ज़रूरी है कि आज यहाँ हम जिस मुसीबतों में पड़े हुए हैं, वही काफर थे जो यहाँ काफर हैं। वहाँ उस सरकारी रसूल का अखलाकी असना उनको इज्जत ले आया, हमारे अंदर भी वही अखलाक आना चाहिए। ये प्रोग्राम नक्शे पैर सोच इसलिए। आखिर में मैं आपका बहुत टाइम ले चुका हूँ, और मैंने पीर सैयद मुख्तार शाह साहब जो मेरे बड़े भाई से ज़्यादा नशीन दुनिया से पर्दा फरमा के, आपने उस घर के बारे में, अपने मुर्शिद के बारे में लिखा, तेरे फजल से फजल का ये फैज़ जारी है, तेरे फजल से फजल का ये फैज़ जारी है, दरे फजल पे यूं ज़िक्र हबीब जारी है। तो जब मैं अपने आप को देखता हूँ ना, तो मुझे लामा की बात याद आ जाती है, जो मैं सर सजदा कभी हुआ, जो मैं सर सजदा कभी हुआ, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज से, वाह दावना अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जनाब,